السلام علیکم، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس ہفتے بھی ہم چین کے مختلف میدانوں میں ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اس حوالے سے مختلف رپورٹس پروگرام میں شامل ہیں، تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں پاکستان پروفیشنلز اینڈ اسٹوڈنٹس فورم کا انعقاد ہوا۔ پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی کی جانب سے فورم کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ پاکستانی طالب علموں کو روزگار کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی جائے۔ 27 اپریل کو پاکستان پروفیشنل اینڈ اسٹوڈنٹس فورم بیجنگ میں منعقد ہوا۔ ہمیں بڑی خوشی ہے آج پاکستان ایمبیسی بیجنگ کی طرف سے ہم نے ایک پروفیشنل اور اسٹوڈنٹس فورم کا انعقاد آج کیا ہے۔ یہ اس کا 2021 کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ انعقاد اس کا کیا ہے، اور اس میں ہماری اس سال یہ کوشش ہے کہ جو پاکستانی طالب علم جو کہ تقریباً 26,000 کے قریب اس وقت چائنا میں ہے، ان کو ایک موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ ان کو یہ رہنمائی مل سکے کہ وہ جب تعلیم سے فارغ ہوں گے تو اس کے بعد وہ روزگار کے مواقع کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا مراحل ہوں گے، اور ان کی جو مہارت ہے جس شعبے میں اس کے بارے میں آگاہی، اس کے بارے میں ان کو بتانا۔ تو اس لیے یہ ہمارے خیال سے یہ فورم بہت مفید ہے۔ اس میں ہم نے کچھ جو چین کے گروپس ہیں، تھانگ انٹرنیشنل، کچھ اور ہیں، ان کو بھی ساتھ اس میں شامل کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ پاکستان اور چین کے درمیان ایک تعلیمی شعبے میں اور صنعتی شعبے میں یہ ایک ہماری کاوش ہے کہ اس کے اندر ہم اپنا حصہ ڈالیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ ماہرین اور اسکالرز نے مستقبل کی ترقی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ I think in Southeast Asia, not only Pakistan, the whole area AI is actually going to be a very important topic. So the most important ways that we can cooperate is from education, sharing and skill set. So it's really important that all the people that who are in this space are developing together. For example, AI for the whole region. For example, there's more data sets that are needed. So most of the large language models right now in the market, they are more driven by English. So the sub languages subcontinent languages, small dialects, everything. These are all new data sets that are needed. So it's more important that countries build their own AI, but the knowledge of how to build AI need to be shared across the region. So more and more you start creating new unique data sets. For example, languages that are spoken by very smaller communities, that would make the real potential of AI, so that these are useful for those regions also. So the most important thing right now is that AI is more dominated by English language, so we need to make sure that that knowledge can be subtracted and given back into the community, so that we have more and more tools that are actually empowering their regional communities. بکر میں پاکستانی کاشتکاروں کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد کینولا کی پیداوار میں ہونے والی پیش رفت پر روشنی ڈالنا تھا۔ تقریب میں کسانوں کے علاوہ مختلف سرمایہ کاری اداروں کے ماہرین نے شرکت کی۔ اس موقع پر کینولا کی کاشت میں استعمال ہونے والی مشینری کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ حال ہی میں پنجاب کے شہر بکھر میں چینی کاروباری ادارے وہان سنفا ہوشن زری کمپنی اور پاکستانی سیڈ کمپنی کی جانب سے کینولا کے کاشتکاروں کے لیے فیلڈ ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کا مقصد کینولا کی کاشت اور دال کی پیداوار میں ہونے والی تازہ ترین پیش رفت پر روشنی ڈالنا تھا، جس میں کسانوں کو روشناس کرنے پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ تقریب میں 300 سے زائد چھوٹے اور بڑے کسانوں کے ساتھ ساتھ مختلف سرکاری اداروں کے ماہرین اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ فیلڈ ڈے میں کینولا کی کاشت میں استعمال ہونے والی جدید مشینری کے عملی مظاہرے شامل تھے۔ شرکاء کو مشینی کڑائی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا، جس کا کینولا کے کاشتکاروں نے خیر مقدم کیا۔ فیلڈ ڈے نے شرکاء کو زرعی فارمز کا دورہ کرنے، محققین اور کسانوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے اور کاشتکاری کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کیا۔
इस इवेंट की बदौलत एनोरा की फसल के लिए नई कटाई की टेक्नोलॉजी को गहराई से समझने और अपनाने में सफलता मिली, जिससे पाकिस्तान में ज़री शुबे की मजमूई तरक्की में मदद मिलेगी। साल 2022 में इस चीनी कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी के साथ हाइब्रिड कैनोला वैरायटी और मुंडारिका टेक्नोलॉजी को फरोग़ देने के एक माहिदे पर दस्तखत किए, जो सिपेक के तहत ज़री ताउन की एक रोशन मिसाल है। एनोरा की इस वैरायटी की काश्तकारी और मुंडारिका टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पाकिस्तान में खुर्दनी दाल की पैदावार में नुमायां इजाफा मुतवक्को है। दोनों ममालिक के दरमियान ज़री शुबे में ताउन पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कोशिशों की आगाज़ भी है। बीजिंग में वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने मुलाकात की है। चीन के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टेस्ला की तरक्की को चीन अमेरिका तिजारती ताउन की कामयाब मिसाल कहा जा सकता है। एलोन मस्क ने भी टेस्ला के चीन के साथ ताउन को मज़ीद गहरा करने का अज़म का इजहार किया। 28 अप्रैल को चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से बीजिंग में टेस्ला के CEO एलोन मस्क ने मुलाकात की। ली चियांग ने कहा कि चीन में टेस्ला की तरक्की को चीन अमेरिका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन की कामयाब मिसाल कहा जा सकता है। हक़ाइक़ से ज़ाहिर होता है कि जीत ताउन चीन और अमेरिका दोनों के बेहतरीन मुफाद में है। उम्मीद की जाती है कि अमेरिका चीन के साथ एक ही समत में चलते हुए दोनों सरबराहान ममलिकत की स्ट्रेटेजिक रहनुमाई पर अमल करेगा और चीन अमेरिका ताल्लुकात की पायदार और मुस्तहकम तरक्की को फ़रोग़ देगा। चीन की हाइपर स्केल मार्केट हमेशा गैर मुल्की कंपनियों के लिए खुली रहेगी। चीन गैर मुल्की सनती और कारोबारी इदारों के लिए बेहतरीन कारोबारी माहौल और मजबूत जामे हिमायत की फराहमी जारी रखेगा ताकि दुनिया भर के कारोबारी इदारे एतमाद और तसल्ली के साथ चीन में सरमायाकारी कर सकें। एलन मस्क ने कहा कि टेस्ला की शंघाई गीगा फैक्ट्री टेस्ला की बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल फैक्ट्री है, जिसकी कामयाबी चीनी टीम की मेहनत और दानिशमंदी की वजह से हासिल हुई। टेस्ला चीन के साथ ताउन को मजीद गहरा करने और मजीद जीत नताइज हासिल करने के लिए तैयार है। बीजिंग में चाइना मीडिया ग्रुप की मेज़बानी में तीसरा ग्लोबल मीडिया इनोवेशन फोरम मुनक़िद हुआ। इजलास में बैनुल-अक़वामी तंजीमों समेत दीगर शोबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर CMG का कहना था कि हमें इंसानी अखलाकियात पर मबनी मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देना चाहिए। 30 अप्रैल को बीजिंग में चाइना मीडिया ग्रुप की मेज़बानी में तीसरा ग्लोबल मीडिया इनोवेशन फोरम मुनक़िद हुआ। ज़हानत बराए भलाई, मुश्तरका ज़िम्मेदारी, मसनूई ज़हानत, मीडिया गवर्नेंस के मौजू पर मौजूदा इजलास में बैनुल अक़वामी तंजीमों, चीनी और गैर मुल्की मेन स्ट्रीम मीडिया तंजीमों, चीनी और गैर मुल्की थिंक टैंक्स, मल्टी नेशनल इंटरप्राइजेज़ और दीगर शोबों के 200 से ज़ायद नुमाइंदों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन शिरकत की। CPC मरकज़ी कमेटी के तशहीरी डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर और CMG के डायरेक्टर शुन हाईशुआंग ने कहा कि हमें इंसानी अखलाकियात पर मबनी मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देना चाहिए और कीमती मसनूई ज़हानत के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मसनूई ज़हानत की हिफाजत और कंट्रोल की सलाहियत को बुलंद करना चाहिए और मुश्तरका तौर पर ज़िम्मेदार मसनूई ज़हानत की तामीर करते हुए कसीरुल जहती ताउन और पायदार मसनूई ज़हानत की तामीर के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाइना मीडिया ग्रुप दुनिया भर के दोस्तों से सीखने, मुश्तरका तौर पर मसनूई ज़हानत के लामहदूद इम्कानात को बरूए कार लाने और बनी नौ इंसान के हमनसीब माशरे की तामीर में मज़ीद मस्बत तवानाई के इजाफे के लिए तैयार है। चीन में पहली समाही के दौरान सनती इदारों के मुनाफे में 4.3% इजाफा हुआ। मुल्क में नामज़द साइज़ से बाला सनती इदारों का मजमूई मुनाफा 1500 बिलियन युआन से ज़ायद तक पहुँच गया। मसनूआत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मुनाफे में भी साल ब साल 18% इजाफा हुआ। चीन की माशी नमू का रुझान बरकरार है और पहली तिमाही में नामजद साइज से बाला सनती इदारों के मुनाफे में साल ब साल 4.3% इजाफा हुआ। चीन के कौमी इदारा शुमारियात ने 27 तारीख को बताया कि जनवरी से मार्च तक मुल्क में नामजद साइज से बाला सनती इदारों का मजमूई मुनाफा 1505.53 बिलियन युआन तक पहुँच गया, जो साल ब साल 4.3% का इजाफा है। तिमाहियों के लिहाज से नामजद साइज से बाला सनती इदारों के मुनाफे में मुसलसल 3 तिमाहियों से इजाफा हुआ है, जिससे बहाली का रुझान जारी है। पहली तिमाही में 41 बड़ी सनतों में से 28 सनतों के मुनाफे में साल ब साल इजाफा देखा गया। ये गुज़श्ता साल के मुकाबले में 2.4% ज़्यादा है। मसनूआत मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मुनाफे में साल ब साल 18% इजाफा हुआ और तरक्की की शरह पिछले साल के मुकाबले में 13.9% पॉइंट्स ज़्यादा थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सनतों के मुनाफे में
بالترتیب 82 اور 32% اضافہ ہوا۔ اس مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں نامزد سائز سے بالا صنعتی منافع میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ شینزو 18 کے خلائی باز خلائی جہاز کی ریٹرن ماڈیول سے آربٹ ماڈیول میں داخل ہو گئے۔ دونوں مشنز کا عملہ 5 دن تک خلائی اسٹیشنز میں ایک ساتھ کام کرے گا۔ شینزو 18 کے عملے کے ارکان خلا میں 90 سے زائد تجربات کریں گے۔ چائنا مینڈ اسپیس انجینئرنگ آفس کے مطابق چین کے انسان بردار خلائی جہاز اور خلائی اسٹیشن کمپلیکس کی کامیاب ڈاکنگ کے بعد شینزو 18 کے خلاباز خلائی جہاز کے ریٹرن ماڈیول سے آربٹ ماڈیول میں داخل ہوئے۔ بیجنگ وقت کے مطابق 26 اپریل کی صبح 5:04 پر تھیانگون اسپیس اسٹیشن پر موجود شینزو 17 کے عملے نے اسپیس اسٹیشن کا دروازہ کھولا اور شینزو 18 کے عملے کا استقبال کیا۔ دونوں مشنز کا عملہ یعنی یہ 6 خلاباز مختلف طے شدہ فرائض کی انجام دہی کے لیے تقریباً 5 دن تک خلائی اسٹیشن میں ایک ساتھ کام کریں گے۔ شینزو 18 خلائی جہاز کو جمعرات کے روز یوچان سیٹلائٹ لانچ سے لانگ مارچ 2F کیریئر راکٹ کی مدد سے لانچ کیا گیا۔ چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کے مطابق فلائٹ آپریشن سمیت تمام مشن کے امور ہموار انداز میں مکمل ہوئے۔ شینزو 18 کے عملے کے ارکان خلا میں 90 سے زائد تجربات کریں گے۔ ان کی موجودگی میں تھیانجو 8 کارگو جہاز بھی خلائی اسٹیشن پر پہنچے گا۔ اس کے علاوہ یہ ارکان 2 سے 3 مرتبہ اسپیس اسٹیشن سے باہر چند سرگرمیوں میں بھی حصہ لیں گے۔ بیجنگ میں چین کے تیار کردہ پہلے ہیومنائڈ روبوٹ تھینگونگ کی نقاب کشائی ہوئی ہے۔ جدید روبوٹس کی بڑے پیمانے پر تجارتی اپلیکیشن کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ لانچنگ تقریب میں روبوٹ نے پیچیدہ ماحول میں بہترین موافقت کا مظاہرہ کیا۔ ہفتے کے روز بیجنگ کے اقتصادی و تکنیکی ترقیاتی زون میں چین کی جانب سے تیار کردہ پہلے ہیومنائڈ روبوٹ تھینگونگ کی نقاب کشائی کی گئی۔ تھینگونگ میں اوپن سورس اور ہم آہنگی اسکیلیبلٹی ہے۔ اس طرح کی خصوصیات کے ساتھ روبوٹک انٹرپرائزز اور سائنسی تحقیقی یونٹ مارکیٹ اور صارفین کی ذاتی ضروریات کے مطابق گھریلو خدمات، صنعتی مینوفیکچرنگ اور دیگر صنعتی اپلیکیشنز کا براہ راست مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ان خوبیوں کی مدد سے ان روبوٹس کی بڑے پیمانے پر تجارتی اپلیکیشنز کو مزید فروغ دیا جا سکتا ہے۔ لانچنگ تقریب میں تھینگونگ نے پیچیدہ ماحول میں بہترین موافقت کا مظاہرہ کیا اور 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے کی مستحکم رفتار حاصل کی۔ ہیومنائڈ روبوٹ بلائنڈ کنڈیشن میں بھی آسانی سے ڈھلوانوں اور سیڑھیوں پر چڑھ سکتا ہے اور ضرورت کے مطابق اپنی چال کو فوری طور پر ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ تھینگونگ کی لمبائی 163 سینٹی میٹر ہے اور یہ 45 کلو گرام وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کا سب سے بڑا آٹو شو جمعرات کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شروع ہوا۔ معروف ٹیک کمپنیز کی جانب سے نئے EV ماڈلز متعارف کروائے گئے۔ نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کے حوالے سے جوش بھی نئے عروج پر پہنچ گیا۔ چین کا سب سے بڑا آٹو شو جمعرات کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں شروع ہوا اور یہ 4 مئی تک جاری رہے گا۔ بیجنگ انٹرنیشنل آٹو موٹیو ایگزیبیشن میں چینی کارساز اداروں اور بین الاقوامی کار برانڈز میں تعاون چین کے نیو الیکٹرک وہیکل شعبے کی شاندار ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ چین میں معروف ٹیک کمپنیوں کی جانب سے نئے EV ماڈلز کے متعارف کروائے جانے کے آغاز کے ساتھ نئی توانائی سے چلنے والی گاڑیوں کے حوالے سے جوش و خروش ایک نئے عروج پر ہے۔ اس آٹو شو کو چینی آٹوموٹیو انڈسٹری اور اس سے آگے کے لیے ایک اہم ٹرینڈ سیٹر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ چین کی نئی توانائی کی گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں جن میں ووکس ویگن کے پارٹنر ایکسپنگ بھی شامل ہیں، بڑے عالمی برانڈز کے ساتھ اپنے اتحاد کے ذریعے چین کی نئی معیاری پیداواری قوتوں کو عالمی سطح پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ایکسپنگ اور ووکس ویگن کے درمیان تعاون انتہائی خوشگوار، مؤثر اور باہمی اعتماد پر مبنی ہے۔ بیجنگ میں چین کی سبز اور نئی توانائی کی مصنوعات کی عالمی مارکیٹ کی طلب پر تبادلہ خیال ہوا۔ تقریب میں یورپی یونین چیمبرز آف کامرس اینڈ ڈیلوائٹ کے کاروباری رہنماؤں نے شرکت کی۔ صدر یورپی یونین چیمبر آف کامرس کا کہنا تھا کہ چین سبز ٹیکنالوجیز میں ایک رہنما کے طور پہ ابھرا ہے۔ یورپی یونین چیمبر آف کامرس اینڈ ڈیلوائٹ کے کاروباری رہنماؤں نے جمعے کو بیجنگ میں ایک تقریب میں چین کی سبز اور نئی توانائی کی مصنوعات کی عالمی مارکیٹ کی طلب پر تبادلہ خیال کیا۔ چین میں غیر ملکی کاروباری رہنما
सब्ज तवानाई के शोबे में ज़्यादा सलाहियत के अमरीकी बयानिए को मुस्तरद कर रहे हैं। आलमी डीकार्बनाइजेशन में चीन के अहम किरदार और माहौल दोस्त मसनूआत की मार्केट की मांग को पूरा करने पर जोर दे रहे हैं। मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस और बैनुल अक़वामी कारोबारी अंजुमनों के तकरीबन 40 नुमाइंदों ने बाहमी मुफादात के लिए वसी इत्तफ़ाक़ राय और ताउन को फ़रोग़ देने की हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया। चीन में यूरोपीय यूनियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जेम्स अलेक्जेंडर ने सब्ज टेक्नोलॉजी में चीन की कामयाबियों की तहसीन की। उनका कहना था कि चीन सब्ज टेक्नोलॉजीज़ में एक रहनुमा के तौर पर उभरा है। चीन की शमूलियत के बगैर डीकार्बनाइजेशन मुमकिन नहीं। डेलॉयट चाइना के चेयरमैन जियांग यंग ने सब्ज इख्तरा के हसूल और 2030 तक कार्बन के अखराज के अपने हदफ को पूरा करने और 2060 तक कार्बन न्यूट्रल के हदफ के हसूल के लिए चीन के अज़्म का अयादा किया। जनूबी चीन के सूबा ग्वांगडोंग के ग्वांगचू शहर में कैंटन मेला जारी है। नुमाइश तलब और रसद के लिहाज से खरीदारों और नुमाइश कुनंदगान के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद है। 1957 से शुरू किया जाने वाला ये मेला एक साल में 2 बार मुनाकिद किया जाता है। जनूबी चीन के सूबा ग्वांगडोंग के ग्वांगचू शहर में जारी कैंटन मेला एक ऐसी नुमाइश है जो तलब और रसद के लिहाज से खरीदारों और नुमाइश कुनंदगान के लिए बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद है। ये मेला आहिस्ता आहिस्ता एक अहम प्लेटफॉर्म बन गया है जो कारोबारी इदारों को आलमी मंडी के साथ हम आहंग करने के लिए तब्दीली और अपग्रेडिंग को जारी रखे हुए है। चीन की गैर मुल्की तिजारत के एक इशारे के तौर पर पहचाने जाने वाला चाइना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फेयर, जिसे कैंटन फेयर भी कहा जाता है, का ये 135वां सेशन है। 1957 में शुरू किया जाने वाला ये मेला एक साल में 2 बार मुनक्किद किया जाता है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जो दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक और खित्तों से खरीदारों को इकट्ठा करता है और इन्हें कामयाबी हासिल करने में मदद फराहम करता है। 15 अप्रैल को शुरू होने वाले इस मेले के मौजूदा एडिशन में 3 अलग अलग 5 रोज़ा मराहिल शामिल हैं जो जदीद मैन्युफैक्चरिंग, मयारी घरेलू ज़िंदगी और बेहतर ज़िंदगी के मौज़ूआत के तहत 5 मई तक जारी रहेंगे। चीन की सेंसर इंडस्ट्री मसनूआत की कारकर्दगी को नुमाया तौर पे बेहतर और लागत को कम कर रही है। 2 साल पहले चीनी स्मार्ट सेंसर मार्केट का हुजम तकरीबन 120 बिलियन युआन था। मौजूदा साल मार्केट की तरक्की करते हुए हुजम 164 बिलियन युआन होने का इम्कान है। चीन की सेंसर इंडस्ट्री मुख्तलिफ पस मंज़र के बासलाहियत अहलकारों की खिदमात की बदौलत मसनूआत की कारकर्दगी को नुमाया तौर पर बेहतर और लागत को कम कर रही है, जिससे सेंसर टेक्नोलॉजी की जिद्दत और तरक्की में मजबूत तहरीक पैदा हो रही है। वस्ती चीन के सूबा हैनान के दारुल हुकूमत जिंगचू में वाक़े इंटेलिजेंट सेंसर के रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक ही यूनिफॉर्म में होने के बावजूद वहाँ का अमला दर हकीकत मुख्तलिफ सेंसर कंपनियों, यूनिवर्सिटियों, इंटरनेट ऑफ थिंग फर्मों और सनती अंजुमनों के मुलाजमीन हैं। माहिरीन के मुताबिक इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल किए गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट मॉडल का मुआजना हैनान स्टू डिशेस के पकाने के तस्वुर से किया जा सकता है, जिसमें मुख्तलिफ अज्जा और जायकों को मिलाया गया है। अपने मुख्तलिफ कैरियर के पस मंज़र के बावजूद ये अफराद अपने काम में जिद्दत और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए अपनी मुतनव्वे महारत और नुक्ता नज़र से फ़ायदा उठा रहे हैं। जर्मनी की मारूफ शुमारियाती कंपनी स्टैटिस्टा ने रिपोर्ट किया कि 2022 में चीनी स्मार्ट सेंसर मार्केट का हजम तकरीबन 120 बिलियन युआन था। पेशन गोइयों के मुताबिक 2024 तक मार्केट की तरक्की करते हुए 164 बिलियन युआन तक पहुंचने का इम्कान है। सुबह गांसू में बड़ा ज़राई पैदावारी इदारा पाशी के पानी की फिक्र से आज़ाद हो गया। गंदम के खेतों में ज़मीन की सतह के साथ फैलाई गई पतली ट्यूबों का एक जाल मौजूद है। ये ट्यूबें डिस्पोजेबल, कम लागत वाली और मशीनी ऑपरेशन में मुदाखलत नहीं करती। शुमाल मगरबी चीन के सूबा गांसू के हेक्सी कॉरिडोर का एक बड़ा ज़राई पैदावारी इदारा अब नई अपनाई गई टेक्नोलॉजी की बदौलत आबपाशी के पानी की फिक्र से आज़ाद हो चुका है। वही शहर के हांजू टाउन में गंदम के खेतों में ज़मीन की सतह के साथ फैलाई गई पतली ट्यूबों का एक जाल मौजूद है, जिनकी मदद से पौधों को पानी और खाद फराहम की जाती है। मुकामी किसानों के मुताबिक इस निज़ाम आबपाशी की मदद से पानी का एक भी कतरा ज़ाया नहीं होता। 2022 से मुकामी हुकाम पानी और खाद के निज़ाम को यकजा करते हुए पानी के तालाबों और ज़खायर और पाइपलाइनों से लेस
आला मयारी खेतों की तामीर कर रहे हैं। इस निज़ाम की बदौलत रवां बरस हर एक मुँह रकबे में 100 क्यूबिक मीटर पानी बचाया गया। लियांगजू ज़िले में 6,20,000 मुँह रकबे पर बचाए गए पानी से मजीद 1,60,000 आला मयारी खेतों को सैराब किया गया। हांजू टाउन के मुकामी पार्टी सेक्रेटरी जनाब वांग जिनपिंग के मुताबिक तरीक़े आबपाशी के साथ साथ हमारे पौधे लगाने के तस्वुरात, आमदनी के असूल के तरीके, ऑपरेशन मॉडल और सनती तरक्की समेत सभी अंदाज बदल गए हैं। चीन के सब तरक्याती विजन से मुताबिकत रखने वाले बैनुल-अक़वामी बागवानी नुमाइश का इनेकाद हुआ। मेहमानों ने पायदार तरक्की में चीन की कामयाबियों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। एक्सपो में 113 नुमाइशी पार्क्स में से 39 बैनुल-अक़वामी जबकि 74 पार्क्स चीन के हैं। चीन के सब तरक्याती विजन से मुताबिकत रखने वाली 2024 की बैनुल-अक़वामी बागबानी नुमाइश में शरीक मेहमानों ने पायदार तरक्की में चीन की कामयाबियों की शानदार अल्फाज में तहसीन की। 26 अप्रैल से 28 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम के इफ्तिताही दिन जुमे को 50 से ज़ायद ममालिक और ख़ित्तों के 280 से ज़ायद गैर मुल्की मेहमानों ने एक्सपो साइट का दौरा किया। एक्सपो में 113 नुमाइशी पार्क कायम किए गए हैं, जिनमें से 39 बैनुल-अक़वामी पार्क्स और 74 चीन के हैं। इन पार्क्स में दुनिया भर के फूलों और पौधों की सैकड़ों अनवा मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ 6 बुनियादी पवेलियन और 7 बड़े नुमाइशी इलाके भी कायम किए गए हैं। एक्सपो की तमाम मनसूबाबंदी और ऑपरेशंस में सब्ज़ तरक्की को कलीदी अहमियत दी गई है। बहुत से बैनुल-अक़वामी मेहमानों ने तकरीब में नुमायाँ होने वाली नई टेक्नोलॉजीज़ और आलात में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मेहमानों के मुताबिक एक्सपो में न सिर्फ हयातियाती तनवुर की तामीर और इलाके की माहौलियात को बेहतर बनाया गया है, बल्कि ये पायदार तरक्की के हसूल के लिए एक रहनुमा भी है। उसका कहना था कि ये काबिल सिताइश है कि चीनी हुकूमत एक्सपो के ज़रिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर कर रही है। माहिरीन का कहना है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरा चीन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। ब्लिंकन का दौरा अमरीका की चीन के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात की ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने चीन के हममंसब वांग यी की दावत पर 24 से 26 अप्रैल तक चीन का दौरा किया था। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के हालिया दौरे चीन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात में बातचीत और ताउन की अहमियत को उजागर किया और चीन के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात की अमरीकी ख्वाहिश को भी ज़ाहिर किया। ब्लिंकन ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर 24 से 26 अप्रैल तक चीन का दौरा किया। दोनों फ़रीक़ैन ने जामे तबादला ख्याल की बुनियाद पर 5 नकाती इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया। सबसे पहले दोनों फ़रीक़ों ने दोनों सरबराहान ममलिकत की रहनुमाई के मुताबिक चीन और अमरीका के ताल्लुकात को मुस्तहकम रखने और तरक्की देने के लिए काम जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। दूसरा, दोनों फ़रीक़ों ने हर सतह पर आला सतही तबादलों और राब्तों को बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तीसरा, दोनों फ़रीक़ों ने ऐलान किया कि वो मसनूई ज़हानत पर चीन अमरीका बैनुल-हुकूमती डायलॉग का पहला इजलास मुनक़्क़िद करेंगे। चौथा, अवामी और सकाफ़ती तबादलों को वुसअत देंगे और एक दूसरे के तलबा को खुशामदीद कहेंगे। पाँचवां, दोनों फ़रीक़ बैनुल-अक़वामी और इलाकाई हॉटस्पॉट मसाइल पर मुशावरत जारी रखेंगे। माहिरीन के मुताबिक चीन और अमरीका के दरमियान बातचीत और ताउन के लिए मुश्तरका बुनियादों की तलाश दोनों ममालिक और दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। बीजिंग ऐसा शहर है जो कदीम और जदीद दोनों रवायात का आगाज़ है। गुज़श्ता कई सालों से बीजिंग बैनुल-अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल की मेज़बानी कर रहा है। रवां साल फेस्टिवल में फ़िल्मों के रजिस्ट्रेशन की तादाद 4,273 तक पहुँच गई है। बीजिंग एक ऐसा शहर जो कदीम और जदीद रवायात दोनों का आगाज़ है। गुज़श्ता कई सालों से ये शहर सालाना बैनुल-अक़वामी फ़िल्मी फेस्टिवल की मेज़बानी कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। 14वीं बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खुशामदीद। आज हम एक थे फिल्म की दुनिया में चलेंगे। एक इंटरनेशनल फिल्मी मेले के तौर पर बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हर साल दुनिया भर से फिल्म साजों को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है।
रवां साल बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्मों की रजिस्ट्रेशन की कुल तादाद 4,273 तक पहुंच चुकी है। इनमें से थिएटर अवार्ड के लिए 118 ममालिक और हितों से कुल 1,509 फीचर फिल्मों की नामजदगियां मौसूल हुई, जो अददी एतबार से एक नया रिकॉर्ड है। बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एक इंटरनेशनल स्टेज है जो पूरी दुनिया के फिल्म साजों को एक जगह जमा होने और ख्यालात का तबादला करने का मौका फराहम करता है। टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तार तरक्की के साथ फिल्मों और टेक्नोलॉजी का इंस्माम करीब से करीब तर होता जा रहा है। रवां साल बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने साइंस और टेक्नोलॉजी को इंतहाई अहमियत दी है, जिससे दुनिया भर के फिल्मी शायकीन के लिए एक बेमिसाल बसरी दावत पेश की गई है। दुनिया के पहले AIGC फ्रांस फिल्म फेस्टिवल के तौर पर बीजिंग फिल्म फेस्टिवल ने पहली बार AIGC शॉर्ट फिल्म सेक्शन का आगाज कर दिया है। ये किताब न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में तकनीकी रुझान की रहनुमाई करता है, बल्कि दुनिया के सामने जिनी फिल्मों की तकनीकी ताकत का भी जाहिर करता है। रवां साल के AIGC सेक्शन ने दुनिया भर से 430 से जायद शानदार फनी काविशों को इकट्ठा किया है। इस फिल्म फेस्टिवल की एक और खास बात फिल्म टेक्नोलॉजी रेड कार्पेट तकरीब है। यहाँ लोग मुतालिका शोबों में सरफहरिस्त AI टेक्नोलॉजी की एक झलक देख सकते हैं। अब जदीद तरीन AI टेक्नोलॉजी, जिसे मतन पर बनी वीडियो और तस्वीर की तैयारी का मुशाहिदा कर सकते हैं। ये न सिर्फ फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी को जाहिर करता है, बल्कि फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर्स को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हकीकी फिल्म और टेलीविजन प्रोग्राम्स की तैयारी में अमली रहनुमाई भी फराहम करता है। बीजिंग फिल्म फेस्टिवल जिसे दर हकीकत फिल्म साजों का इज्तिमा समझा जाता है, अब एक अवामी जश्न में तब्दील हो गया है। रवां साल बीजिंग फिल्म फेस्टिवल एक बेमिसाल तख्लीकी मार्केट है, जो फिल्म, गेम्स और तफरीह का इहाता करता है। यहाँ लोग अपनी पसंदीदा फिल्म से मुतालिक मसनूआत का इंतखाब कर सकते हैं और मुख्तलिफ दिलचस्प गेम्स में हिस्सा भी ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ फिल्मी अनासर के साथ हर किस्म की मसनूआत मौजूद हैं, वाकई हैरत अंगेज और जिगर देने वाली है। रवां साल बीजिंग फिल्म फेस्टिवल ने 220 से जायद चीनी और गैर मुल्की फिल्मों का इंतखाब किया है और 27 सिनेमा घरों में 800 से जायद नुमाइशें मुनाकिद की गई हैं। ये फिल्में मुख्तलिफ नौइयत और अंदाज के हामिल हैं। यहाँ आपको चाहे किसी भी नौइयत की फिल्म पसंद हो, आप अपना पसंदीदा फिल्मी मौजू तलाश कर सकते हैं। सिनेमा के अंदर जहाँ रोशनी और साए रक्स कर रहे हैं, वहाँ सिनेमा के बाहर का माहौल भी इंतहाई ही वला अंगेज है। ओपन एयर स्क्रीनिंग एरिया से शायकीन को तारों भरे आसमान के नीचे फिल्मों की दिलकशी से लुत्फ अंदाज होने का मुफरीद तजुर्बा मिल सकता है। मुख्तलिफ रंगारंगों सरगर्मियों और तख्लीक बाजारों के जरिए बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने हकीकी मानों में फिल्म हर एक की पहुंच में है को यकीनी बनाया है। ये न सिर्फ एक फिल्मी दावत है, बल्कि सकाफती तबादलों का एक प्लेटफॉर्म भी है, जिससे शहरियों को फिल्मों से लुत्फ अंदाज होते हुए सकाफत के तनव्वु और जामियत का एहसास होता है। अगरचे बीजिंग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का दौरानिया 1 माह से भी कम है, लेकिन फिल्म की दिलकशी और उसकी नुमायां इक्तिसादी कदर ने हमारी रोजमर्रा जिंदगी को मुसलसल नई तवानाई फराहम की है। बीजिंग में जुंगवेनचुंग फोरम 120 सरगर्मियों की मेज़बानी कर रहा है। फोरम में 100 से ज़्यादा ममालिक के हुकूमती इदारे और बैनुल-अक़वामी तंजीमें शरीक हैं। कई ज़िमनी फोरम्स में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। मैं हूँ आपकी जिनी दोस्त नौरीन। इस वक्त मैं बीजिंग में 2024 जुंगवेनचुंग फोरम में मौजूद हूँ। अभी जो वीडियो आपने देखी है वो AI से बनाई गई है। मौजूदा फोरम में हमें इसी तरह दिलकश और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिला है। आइए मिलकर कुछ नया दरियाफ्त करते हैं।
मौजूदा फोरम तकरीबन 120 सरगर्मियों की मेज़बानी कर रहा है। 100 से ज़ायद ममालिक और हितों से 150 से ज़ायद गैर मुल्की हुकूमती इदारे और बैनुल-अक़वामी तंजीमें फोरम में शरीक हैं और बहुत से मारूफ मंदूबी फोरम से खिताब कर रहे हैं। चुंगगुनसुन फोरम की कलीद ख्यालात का तबादला है। यहाँ मरकज़ी फोरम के अलावा 7 ज़िमनी फोरम्स भी हैं। यह फोरम वाकई बैनुल-अक़वामी मियार का है। सैकड़ों गैर मुल्की मेहमान दुनिया भर के इख्तिलाई ख्यालात और तर्ज़ अमल को शेयर कर रहे हैं। इलावा अज़ीम इस मरतबा चीन आलमी मियार की साइंसी और तकनीकी तंजीमों, गैर मुल्की सरकारी इदारों और बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इल्मी जराइद के साथ भी गहरा ताउन कर रहा है। इसके अलावा कई नए ज़िमनी फोरम्स जैसे यूनेस्को के ज़ेर एहतमाम साइंस की दहाई पर बैनुल-अक़वामी फोरम हमारे लिए एक नया बैनुल-अक़वामी मंजरनामा लाएंगे। मौजूदा फोरम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जा रहा है, जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी के जदीद मौज़ूआत जैसा कि बुनियादी तहक़ीक़, मसूनी ज़हानत, मुस्तक़बिल की सनतें, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वगैरह पर बातचीत भी शामिल हैं। रवां साल नोबेल इनाम, फिल्ड्स मेडल और ट्यूरिंग अवार्ड के फातिहीन भी यहाँ खिताब कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रेड कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी और कारोबार का संगम है। यहाँ आप इंतहाई जदीद तरीन तकनीकी मसनूआत जैसे रोबोट, नेकेड आई 3D और हैरत अंगेज DP टेक्नोलॉजीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं। ये न सिर्फ टेक्नोलॉजी के जदीद तरीन मुज़हर है, बल्कि ये भी बताते हैं कि हमारी मुस्तक़बिल की ज़िंदगी कितनी खुशगवार होगी। दोस्तों, अगर आप घूमते हुए थक जाएं तो आप स्मार्ट रोबोट के तैयार करता एक कप कॉफी का लुत्फ़ उठा सकेंगे। आइए, लाख花的这个可以选4个图案。好 ，and this one is so cute. Next one. देखें, ये हाथ से बनी लाटे आर्ट कॉफी जैसा है, बहुत खूबसूरत है ना। मैं ट्राई करो, बहुत मज़े का भी है। इस कॉन्फ्रेंस ने 40 से ज़ायद ममालिक और हितों के 300 से ज़ायद टेक्नोलॉजी तंजीमों के 1000 से ज़ायद आला टेक्नोलॉजी मंसूबों का इंतखाब किया। इसके साथ साथ कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ज़बरदस्त फहरिस्त का ऐलान किया जाएगा, यानी 100 बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन इनोवेशन प्रोजेक्ट्स की फहरिस्त। इस फहरिस्त में नई नस्ल की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायो टेक्नोलॉजी जैसे मशहूर शोबों में सरफहरिस्त प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इनमें बैनुल-अक़वामी मंसूबों का तनासुब 73% है। बीजिंग एक मुतहरक शहर है जिसने पिछली एक दहाई में टेक्नोलॉजी कंपनियों के क़याम का ज़बरदस्त मुशाहिदा किया है। सन 2014 में यूमिया औसतन 146 नई कंपनियां कायम की गई थीं। ये तादाद 2023 में बढ़कर 333 हो गई है और सिर्फ 3 सालों में एक आला सतही खुदकार ड्राइविंग मुजाहिरे का ज़ूम कायम किया गया है। स्मार्ट गाड़ियाँ, स्मार्ट सड़कें, रियल टाइम क्लाउड सर्विसेज, मुस्तहकम नेटवर्क्स मिलकर इस मुस्तक़बिल के तकनीकी मंजरनामे को तश्कील देते हैं और इन तमाम इश्तराकात का माखिज़ इस्लाही क़ुव्वत है। हाईटेक एंटरप्राइज के लिए पॉलिसी सपोर्ट के साथ साथ माली मदद और हुनर की तरबियत ने चीन को साइंसी और तकनीकी इख्तलाआत के लिए एक दोस्ताना मुकाम बना दिया है, जिनमें टेक्नोलॉजी कंपनियों में एंटरप्रेन्योरशिप की रफ्तार तेज़ है। यही वजह है कि बहुत सी गैर मुल्की टेक्नोलॉजी कंपनियां चीन में दाखिल हुई हैं। जिद्द कभी खत्म नहीं हो सकती। हम अगले चुंगगुनसुन फोरम की आमद के मंतज़िर हैं और एक साथ मिलकर तकनीकी जिद्द तराजी का मुशाहिदा करेंगे। ताई ची की मश्क खातून की ज़िंदगी भर की मोहब्बत बन गई। नाना और माँ से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाली मश्क ली लैन होई तक पहुँच गई। ली लैन अब अपने बच्चों को भी आबा और अजदाद का हुनर सिखा रही है। इसके अलावा वो अपने गांव में मार्शल आर्ट्स की शॉर्ट वीडियोस बनाने वाली पहली खातून हैं।
मैंने बचपन में ही थाई जी ट्रान की मशक करना शुरू की थी। अब ये मेरी ज़िंदगी भर की मोहब्बत है। मेरे नाना और मेरी माँ भी इसकी मशक करते थे और यूँ ये नस्ल दर नस्ल मुझ तक पहुँचा। मैं हूँ चन अंदाज के थाई जी ट्रान की 13वीं नस्ल की वारिस वी लियन हुई। मैं सूबा खनान के शहर जाओजो की वेंशन काउंटी के गांव चिन जाओगो में पैदा हुई। ये गांव थाई जी ट्रान की जाय पैदाइश है। हमारे गांव में स्क्वायर डांस नहीं होता क्योंकि हमारा स्क्वायर डांस थाई जी ट्रान है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि चिन जाओगो का पानी पियोगे तो अपनी टांगें मोड़ सकोगे। हमारे गांव में मर्द, खातीन, बूढ़े, जवान तकरीबन सभी थाई जी की मशक करते हैं। मेरा बचपन एक ऐसे ख़ानदान में गुजरा जो मार्शल आर्ट्स का ख़ानदान है। मैं 4 साल की उम्र से अपनी वालिदा और उस्ताद चेन आई चुन से चन अंदाज का थाई जी ट्रान सीख रही हूँ। मेरी वालिदा उस वक्त भी मार्शल आर्ट्स की कुछ टेक्निक्स से मुझे सबक सिखाती थी। आज मेरी थाई जी ट्रान में महारत असल में वालिदा की मार का नतीजा है। मैं अपने बच्चे को भी थाई जी ट्रान सिखाती हूँ। 可以坚持住吗？真棒！ मुझ पर थाई जी का बहुत असर हुआ है। मेरा मिजाज इससे बहुत पुख्ता हुआ है। दूसरों की निस्बत मैं ज़्यादा दबाव का सामना करने के काबिल हूँ। जिस काम को करने की हिम्मत दूसरों में ना हो वो मैं कर सकती हूँ। मैं अपने गांव की पहली फर्द हूँ जिसने शॉर्ट वीडियोस बनाने में हिस्सा लिया। 哦，漂亮漂亮！哎呀，这个故宫的建筑真的是拍出来太壮观了。 एक बार शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर मैंने एक स्मार्ट लड़की को मार्शल आर्ट्स करते देखा तो मेरे जहन में ख्याल आया कि शॉर्ट वीडियोस की शक्ल में हम भी अपने आबाई शहर की सकाफत को अच्छी तरह दिखा सकते हैं। I want to feel me who. Okay. It was beautiful what you did. 打开一步。啊 ，no。 Thank you very much. I'm really impressed. Really enjoyed. 特别感谢你教他这个太极拳。 मुझे याद है एक दिन जब घर आई तो अम्मी ने मुझे बुलाया और पूछा कि तुम रात देर तक क्या कर रही थी। मैंने कहा कि मैं शॉर्ट वीडियोस बना रही थी। उन्होंने कहा कि क्या इसका कुछ फ़ायदा भी है। मैंने कहा शायद हो जाए। फिर मैंने कहा कि आप मुझे मज़ीद 2-3 माह दे दें। अगर 3 माह में भी मैं कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं फैक्ट्री पर जाकर काम करूँगी। उसी दौरान मेरी एक वीडियो भी वायरल हो गई। मुझे लगा कि वीडियो वायरल होने के बाद मेरी वीडियो ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इसके नतीजे में मैंने ऑनलाइन लोगों को सिखाना शुरू किया जिसमें लोगों को थाई जी सिखाने का तरीका भी शामिल था। 把你的重心移在后腿上。 बाद में रफ्ता रफ्ता मैंने जाना कि दरहकीकत हम शॉर्ट वीडियोस के ज़रिए घर से बाहर निकले बगैर भी सबको थाई जी की मशक करवा सकते हैं और फिर मैंने अपना लाइव स्ट्रीमिंग का सफ़र शुरू किया। 你们都进来吗？网络卡不卡？大家可以看一下啊，因为我们现在是在山里。那么我们通过短视频创作者शॉर्ट वीडियो मेकर की शनाख्त के ज़रिए हमें थाई जी ट्रान का वारिस भी कहा जाता है। हमें अपनी सकाफत के इजहार का एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला है। अब मैं थाई जी को हिप हॉप डांस और रैप म्यूज़िक के साथ भी जोड़ती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान थाई जी ट्रान पर तवज्जो दें। मैं चाहती हूँ कि थाई जी नौजवानों में मकबूल हो जाए और थाई जी फैशनेबल बॉक्सिंग बन जाए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए GNN।
वेलकम बैक। दाई कौमियत के नए साल के आगाज़ पर ख़ास तौर पर तैयार करदा खाना खाया जाता है। अप्रैल में मुख्तसर वक्त के लिए शीज़ीपा के नायाब फूल खिलते हैं। ताज़ा फूलों को जमा करने के बाद धोकर सूरज की रोशनी में खुश्क किया जाता है। चावलों के आटे में फूल डालकर उसे केले के पत्तों में ढाम कर तैयार किया जाता है। दोस्तों, मैं हूं जूसी और मुझे सारा कहते हैं। ये अप्रैल का महीना है और इस वक्त शीशरंग बनना में शदीद तेज़ धूप चमक रही है। इस वक्त यहाँ पर इनका सालाना वाटर स्प्लैशिंग फेस्टिवल मनाया जा रहा है, यानी दाई कौमियत के साल नौ का आगाज़ हो गया है। जी हाँ, और आज यहाँ हम एक खाना खाएंगे जो यहाँ दाई कौमियत इस मौके पर जरूर खाते हैं। चलिए। होनोसो है जो नए साल के मौके पर हर दाई खानदान लाजमी खाता है। होनोसो बनाने के लिए लेसदार चावल, केले के पत्ते, शक्कर और एक खास किस्म का फूल शीज़ी ख्वा चाहिए होता है। इसके अलावा कटे हुए नारियल और मूंगफली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनान में अप्रैल के महीने में बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए शीज़ी ख्वा के फूल खिलते हैं। ये यूनान में फूलों की एक बेहद नायाब किस्म है। फूल खिल रहे हैं और दाई कौमियत का साल नौ जल्द ही आ रहा है। नए साल के मौके पर यहाँ का हर घराना होनोसु बनाता है, लेकिन ये लोग ऐसे होनोसु सबसे ज्यादा पसंद करते हैं जो शीज़ी ख्वा के फूलों से बनाए गए हों। चूंकि शीज़ी ख्वा एक नायाब किस्म है, इसलिए यूनान में भी ये हर जगह नहीं मिलता है और इसके फूल जमा करने के लिए आपको इंतजार करना होगा। हवा के ताज़ा झोंकों से बांस की टोकरी में खुशबू बढ़ जाती है। ताज़ा फूल जमा करने के बाद सबसे पहला काम इन फूलों को धोकर खुश्क करना है। सूरज की रोशनी और ताज़ा हवा फूलों की खुशबू को इनमें ही कैद कर देती है और इसके बाद अगला काम होनोसु बनाने का होगा। दाई लोग ग्लूटेन वाले चावल खाना पसंद करते हैं। होनोसु ऐसा ही खाना है जो स्टिकी राइस के आटे से बनाया जाता है। पहले से तैयार शुदा चावल का आटा लें, इसमें ब्राउन शुगर और खुश्क मसले हुए शीज़ी ख्वा फूल शामिल करें, मिक्स करें और गूंदें। केले के 2 पत्तों को एक साथ लपेटकर एक छोटे मुस्ततील बैग की शक्ल दें। बर्तन में भाप बनाएं और 30 मिनट बाद मजेदार होनोसु तैयार है। केले के पत्तों को खोलें। स्टिकी, चिपचिपा सा लेकिन मीठा लजीज होनोसु आपके सामने है। कोशिश बिल्कुल। कैसा लगा? इसका जायका अच्छा है और लेसदार होने के बावजूद ये दांतों से नहीं चिपक रहा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। दाई कौमियत की खातीन के हाथों में आकर ये फूल भी लजीज मिठाई बन गए हैं।
जी हाँ, नए साल के दौरान ये न सिर्फ ताई कौमियत का लाजमी पकवान है, बल्कि इसमें उनके घर का जायका भी शामिल है। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।